आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। पहले सम्राट केरल के कोल्लम में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य के पास फोर्स तो थी लेकिन शक्ति नहीं थी। गांधी जी के पास फोर्स नहीं थी लेकिन उनके पास सच था, इसलिए उनके पास शक्ति थी। नारायण गुरु के पास ताकत या बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था लेकिन वे आसानी से केरल के सबसे ताकतवर आदमी थे। उनकी ताकत का अंदाज़ा लगाइए कि 100 साल बाद पॉलिटिकल क्लास के कई लोग आज नारायण गुरु को याद करने आए हैं। गांधी जी और नारायण गुरु जी का हिंसा करने वालों को साफ मैसेज है कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि भारत में राजनीतिक लड़ाई भी ऐसी ही है। एक तरफ सच, विनम्रता और अहिंसा है तो दूसरी तरफ गुस्सा, हिंसा, नफरत और घमंड है। भारत की आत्मा अहिंसा और सच के विचार पर आधारित है। Then I thought to myself, there is a difference between force and power. അവിടെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശക്തിയും അധികാരവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം. The British Empire had force. ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ശക്തി, But they had no power. പക്ഷെ അവർക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Gandhiji had no force, but he had the truth and so he had power. ഗാന്ധിജിക്ക് അധികാരശക്തിയോ മേധാശക്തിയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ധാർമ്മികമായ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ. And the same way Narayana Guru ji had no strength. അതുപോലെ നാരായണ ഗുരുവിന്റെ കയ്യിൽ മേധാശക്തിയോ ആധിപത്യ ശക്തിയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. He did not have huge amounts of wealth. അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. He did not drive in a fancy car. അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ വിനോദം പോലുള്ള ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന പോലുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. But he was easily the most powerful man in Kerala. പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും സുശക്തനായ മനുഷ്യൻ മഹാത്മാഗാന്ധി ആയിരുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കും. And imagine his power that today, 100 years later, the entire political class of Kerala has come to commemorate him. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട ശേഷം ഇതാ ഈ വേദിയിൽ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലെ രാഷ്ട്രീയ വൃത്തത്തിലെ നേതാക്കൾ അഖിലം സമ്മേളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഗാന്ധിജിയുടെയും നാരായണ ഗുരുവിന്റെയും കൂടിക്കാഴ്ചയെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. And there is a clear message to those that use violence, those that use hatred from Narayana Guruji and Mahatma Gandhi ji. ഹിംസയും രോഷവും വെച്ചു പുലർത്തുന്നവർ, അതുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും ഗുരുവിൽ നിന്നും ഗാന്ധിജിയിൽ നിന്നും വലിയ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. And that message is that there is nothing to be gained from it, there is only something to be lost from it. ആ പഠിക്കേണ്ട പാഠം ഇതാണ്: ഹിംസയിൽ നിന്നും വിദ്വേഷത്തിൽ നിന്നും ഒന്നും നേടാനില്ല, നഷ്ടപ്പെടുത്താനാണെങ്കിൽ ധാരാളമുണ്ട് താനും. The political fight in India is also very similar. ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ സമരവും ഇതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. On one side there is truth, non-violence, humility. ഒരു ഭാഗത്ത് സത്യമുണ്ട്, സൗമ്യതയുണ്ട്, അഹിംസയുണ്ട്. And on the other side there is anger, violence, hatred and arrogance. മറുഭാഗത്ത് രോഷമുണ്ട്, ഹിംസയുണ്ട്, വൈരമുണ്ട്, വിദ്വേഷമുണ്ട്. Those with violence, those with anger might have force, but they have no power. രോഷമുള്ളവർക്ക്, വിദ്വേഷമുള്ളവർക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ശക്തിയും അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ അവർക്കൊരിക്കലും ഗാന്ധിജിയെ പോലുള്ളവർ കൈവശം വെച്ചിരുന്ന അധാർമികമായിട്ടുള്ള ശക്തിയോ ആന്തരികമായ ശക്തിയോ അവരുടെ കയ്യിലില്ല. Because the spirit of people like Narayana Guruji, the spirit of people like Mahatma Gandhi ji, and in fact the spirit of India is fundamentally based on the idea of truth and non-violence. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एग्रीकल्चर और रूरल ट्रांसफॉर्मेशन थीम पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दुनिया हेल्थ के संबंध में ज़्यादा सचेत है, जिसमें होलिस्टिक हेल्थ केयर और ऑर्गेनिक फूड पर ज़्यादा रुचि है। भारत में हमें नेचुरल फार्मिंग पर बल देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से दुनिया के बाजार तक पहुँचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है। आज दुनिया हेल्थ के संबंध में ज्यादा कॉन्शियस है। होलिस्टिक हेल्थ केयर और उसमें ऑर्गेनिक डाइट, ऑर्गेनिक फूड, इस पर बहुत रुचि है। भारत में हमें
केमिकल फ्री खेती पर बल देना ही होगा। हमें नेचुरल फार्मिंग पर बल देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से, केमिकल फ्री प्रोडक्ट से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है। उसके लिए सर्टिफिकेशन, लेबोरेटरी, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार सोच रही है, लेकिन आप लोग इसमें भी जरूर अपने विचार रखिए। के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंडाली में खारवेला रीजनल ट्रेनिंग सेंटर में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के 57वें स्थापना दिवस में शामिल हुए। चलिए आगे बढ़ेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि आज गोवा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और मैं 7वीं बार बजट पेश करने जा रहा हूं। इस बजट में हम गोवा के लिए, लोगों के लिए और मानव संसाधन विकास के लिए बहुत सारी चीजें करेंगे। बजट सेशन गोवा असेंबली का स्टार्ट हो रहा है और पहले ही दिन मैं गोवा सरकार के बजट 7वीं बार पेश करने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आज 3:30 बजे बजट स्टार्ट होगा। अप्रोक्सीमेटली इट विल गो फॉर द 2 आवर्स। गोवा के लोगों के लिए और गोवा ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए ढेर सारी चीज इस बजट में हम करेंगे। चलिए जहानाबाद से खबर आई है। जहानाबाद जिले के रतनी प्रखंड क्षेत्र के दारोगा बेघा गांव में करंट लगने से एक 18 वर्षीय युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान दारोगा बेघा गांव निवासी धर्मराज कुमार 18 वर्ष के रूप में हुई है। वह जोगेंद्र कुमार का पुत्र बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार धर्मराज कुमार होली के अवसर पर गांव आया हुआ था। वह खेत की ओर शौच के लिए गया था। इसी दौरान खेत के पास लगे बिजली के पोल में लगे सपोर्टिंग तार में करंट आ गया, जिसकी चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोग उसे आनंद फानन इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए अमर शहीद जगदेव प्रसाद सदर अस्पताल जहानाबाद रेफर किया। लेकिन अस्पताल पहुंचने के दौरान ही उसकी हालत बिगड़ गई और डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है और पूरे गाँव में शोक की लहर है। चोली में ये लड़का शौच करने गया था, है ना, उधर टहलने के लिए गया था। टहलते टहलते पॉल की तरफ गया। पॉल में जो नीचे साइड में जो हुक लगा हुआ रहता है एक खींचने के लिए, उसी में टच किया, उसी बीच में इसको लाइन मारा। मतलब स्टेक में लाइन आ रहा था पहले से। अब इसको अगर पहले से जानकारी इसको रहता तो उधर तो जाता नहीं, लेकिन जब उधर जा रहा था तो जो पॉल गड़ा हुआ रहता है, तो पॉल के नीचे अक्सर देखे होंगे कि जहाँ पे गड़ा हुआ रहता है वहाँ पे ऐसा एंगल टाइप के हुक बनाया हुआ रहता है, तार दो वो निकाला हुआ रहता है उसको खींचने के लिए। पॉल को खींचने के लिए रोड पर जब लेके जाता है गाड़ने के लिए, उसी में टच किया है और टच करने के बाद डेथ कर गया। तो उधर रतनी PSC लाया गया, इलाज कराया गया, फिर यहाँ लाया गया, डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित किया गया। ये घटना कहाँ की घटना ये है? घटना रतनी पंचायत अंतर्गत दरोगा भी है, गाँव है, वहीं का है। जोगिंदर यादव पिताजी का नाम है, धर्मराज कुमार नाम है बच्चा का नाम। बहुत पढ़ने में तेज था, एक ही बच्चा था। दुख है हम लोग सबको। क्या लगता है किसकी लापरवाही के कारण से? अब तो लापरवाही पॉल किसके अंतर्गत आता है वो तो आपको पता है, बिजली विभाग की लापरवाही। हाँ, तो बिजली विभाग का तो लापरवाही है, लेकिन जो स्टेट पॉल को देखना पड़ेगा। जहाँ खेत खलिहान में पोल उसको कवर करने की बात बिहार सरकार कर रही है, हाँ, सुरक्षा को लेकर। हाँ, तो वो तो जरूरी है ना, कारण कि बराबर अक्सर घटना घटने रहता है। कितने वाट का वहाँ तार था? वो क्या तार जो घिंचा हुआ है, जो पोल था, कितने वाट का कुछ पता है आपको? अंदाजा है कितने? ये तो पॉल खींचा, तार से कुछ नहीं हुआ है। वो नीचे जो पॉल गड़ा हुआ रहता है, पॉल में देखे होंगे कि 2 हुक टाइप के लगा हुआ रहता है सपोर्टिंग, नीचे में सपोर्टिंग। अब वो उससे टच किया हुआ रहता है, समझ गए? जो 2 हुक टाइप के रहता है उसी में टच किया है पैर। अच्छा। और पैर में ही लाइन मारा हो। आपका परिचय? हमारा पूर्व मुखिया अजय कुमार हुआ रतनी। हमको तो ग्रामीण से पता चला इसी तरह का। अभी सदर अस्पताल लेके आए हुए हैं? हाँ, रतनी PSC से सदर अस्पताल लेकर आए हैं। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर साहब बोले कि ट्रीटमेंट किए, चेक किए, चेकअप के बाद उन्होंने
होली में मारवाड़ी युवा मंच जमशेदपुर शाखा के तत्वाधान में एक भव्य हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो नरभेराम स्कूल बिष्टुपुर स्थित सभागार में किया गया। यह कार्यक्रम जमशेदपुर में होली के उत्साह और सामाजिक सौहार्द के संदेश के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में देश भर से आए चर्चित हास्य कवि जैसे सुदीप भोला, खुशबू शर्मा, स्वयं श्रीवास्तव, अजात शत्रु और विनोद पाल ने एक से बढ़कर एक हास्य और व्यंग रचनाएं प्रस्तुत की। श्रोताओं को खूब गुदगुदाया, सभागार ठहाकों और तालियों से गूंजता रहा। इस अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच के पदाधिकारियों के साथ शहर के कई गणमान्य समाजसेवी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ सभी अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से समाज में सकारात्मक एकता और रचनात्मकता को बढ़ावा देना मंच का मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब बजट के बाद उसके पूर्ण सक्षमता का लाभ देश को मिले। इस दिशा में भी आपका अनुभव, आपके सुझाव और सरल तरीके से बजट का सर्वाधिक लोगों को लाभ हो। बजट का पाई पैसा जिसके लिए दिया गया है उसको जल्द से जल्द परिपूर्ण कैसे करें, आपके सुझाव इस वेबिनार के लिए बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि विश्वकर्मा हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। कृषि भारत की दीर्घकालिक विकास यात्रा का रणनीतिक स्तंभ है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। आप सभी ने बजट निर्माण में अपने मूल्यवान सुझावों से बहुत सहयोग दिया और आपने देखा होगा बजट में आप सबके सुझाव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत काम आए हैं। लेकिन अब बजट आ चुका है, अब बजट के बाद उसके फुल पोटेंशियल का लाभ देश को मिले, इस दिशा में भी आपका अनुभव, आपके सुझाव और सरल तरीके से बजट का सर्वाधिक लोगों को लाभ हो। बजट का पाई पैसा जिस हेतु से दिया गया है उसको परिपूर्ण कैसे करें, जल्द से जल्द कैसे करें, आपके सुझाव ये वेबिनार के लिए बहुत अहम है। साथियों, आप सभी जानते हैं कृषि, एग्रीकल्चर, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का स्ट्रेटेजिक पिलर भी है और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि पहली बार नवंबर में अहमदाबाद में फ्रेंचाइजी साइकिल लीग होगी। इसमें 8 शहर आधारित या क्षेत्र आधारित टीमें होंगी। यह एक नई साइकिलिंग प्रतियोगिता की शुरुआत है। साइकिलिंग फिटनेस है, साइकिलिंग प्रदूषण का समाधान है, साइकिलिंग एक खेल है और साइकिलिंग ओलंपिक भावना है। साइकिलिंग कल्चर और स्पोर्ट्स कल्चर का हिस्सा बन जाएगा और लीग कल्चर एक अच्छा अनुभव लाएगा। साइकिलिंग एक स्पोर्ट्स भी है और देश में पहली बार फ्रेंचाइजी बेस्ड साइकिल लीग का आयोजन नवंबर महीने में अहमदाबाद में हो रहा है। उसमें 8 सिटी बेस्ड या रीजन बेस्ड टीम होगी और पहली बार ये लीग के द्वारा साइकिलिंग कंपटीशन करेंगे। साइकिलिंग फिटनेस है, साइकिलिंग पोल्यूशन का सॉल्यूशन है, साइकिलिंग स्पोर्ट्स भी है, साइकिलिंग में ओलंपिक्स में अच्छे मेडल भी है और इंडिया में साइकिलिंग को स्पोर्ट्स के हिसाब से कम देखा गया है। ये साइकिल इंडिया लीग के द्वारा देश में साइकिलिंग कल्चर आगे बढ़ेगा, देश में स्पोर्ट्स कल्चर आगे बढ़ेगा, लीग कल्चर आगे बढ़ेगा। हमारा बहुत एक सुखद अनुभव रहा
पुणे में UCL 202 साइकिलिंग रेस का आयोजन हुआ था और ये आयोजन में 25 लाख से अधिक लोगों ने इवेंट को प्रत्यक्ष देखा। अच्छी व्यूवरशिप मिली। देश के लोग एज ए स्पोर्ट्स, साइकिलिंग एज ए स्पोर्ट्स के रूप में साइकिलिंग को देखने लगे हैं और मोदी जी ने कहा है कि देश में हमें स्पोर्ट्स इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए स्पोर्ट्समैन को स्पोर्ट्स के मैदान में रखना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स इवेंट होनी चाहिए। आज देश में 20 से अधिक स्पोर्ट्स में लीग कल्चर डेवलप हो चुका है। उसमें से एक और साइकिलिंग इंडिया लीग का भी एक एडिशन हो रहा है। मैं साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स मेरे अथॉरिटी साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।